increase the revenues in order to increase the profit of the business organization. So they can play with their expenses, they can cut down their expenses which are discretionary expenses basically, and by doing so they can change the profit, or they can play with the profit in the short term, which may affect the long term performance of the business organization. In the same way, when we talk about the recording of the revenue, one of the problems that comes in is that how much of the revenue is to be recorded by the business organization and when they should record the revenue. Means, as per IFRS 18, the provision is that the company can record the revenue, number one, at the time of sale, number time at the time of shipment of the goods, number two, number three, it could be at the time of receipt of goods to the buyer, or number four could be when the cash is paid by the buyer. So these are different, some of the options that are available to record the revenue. Let's suppose a company has decided that at the time of sale, they would record it as revenue of the business organization. But as we were discussing, okay, in the previous session, that let's suppose there's a software company and that software company has sold a software package which also has some after sale services. In this context, that for instance, that if there are certain problems in the software, if there are certain bugs that have to be fixed, the company would do it later on. Okay, the free of cost, or the after sale services would be available. Now in that situation, some of you who has accounting or finance background, they can differentiate it out, that there is an earned revenue and there is unearned revenue. So unearned revenue basically means the amount that you have received as revenue, but against that you have not provided the services to that particular client or the business organization. So for instance, the same practice was done by Microsoft, that let's suppose they sold a software package for $100. So what used to happen was that against $100, they used to record 70% of that amount as revenue. Yeah, this is not. Just wait, please. They will record the 70% of this amount as revenue, and the remaining amount would be recorded as unearned revenue for the business organization. So in this situation, this 70% would lead to $70. So it means that this $70 would be recorded as revenue. The remaining would be recorded as unearned revenue, which would be treated as liability. Now, who has to decide that out of this 170% would be recorded as revenue? It's the management of the company. So if they want to enhance the revenue, they may record it like this, that we do not have too much of the complaints from the customers, so most of the revenue should be recorded as earned revenue. So they can record 90% of the revenue as the revenue of the business organization, and remaining 10% can be recorded as unearned revenue or the liability of the business organization. So just by playing these accounting policies, what they can do is they can increase or inflate the revenue of the business organization, and by increasing the revenue, the profit of the business organization would increase. So since it is more related to numbers game, normally it is said that profit maximization should not be the overall objective of the firm, despite of the fact that when you say that a business organization is an entity which is a legal, it is a legal entity which is established for the sake of earning profit. One problem with these entities is that they have certain options available to play the numbers that are related with the revenues and expenses, and by playing with these numbers, you can change the profit of the business organization. So this is one of the issue. And the second is, if you are deferring the expenses, you are basically damaging the overall performance of the business organization for the current profits of the business organization. In the same way, if you talk about the earning per share, no doubt this seems to be good. That profit after tax, overall profit earned by the business organization divided by number of shares. So if we are able to increase the profit of the business organization, what would happen is that earning per share would also increase. But now another question is that whatsoever the earning per share as is there, for example, the total profit is 100, the number of issued shares were 20, so it means that the earning per share is $5. But there is no surety when the company would pay this earning to the shareholder, because out of the earning that has been earned by the business organization,
Now the management has to decide that out of this amount, how much is to be paid in the form of dividend and how much is to be held by the business organization. So let's suppose the company decide that we are not paying dividends. So it means although the shareholders has earned a profit of $5 or ₹5, he or she won't get anything because that earning is not being transferred to them in the form of you can say the dividends. So वो किसी ने एक पॉइंट भी रेज किया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कि फॉर इंस्टेंस प्रॉफिट तो इसी साल हुआ लेकिन डिविडेंड कंपनी जो है ना होल्ड कर लेती है लेटर ऑन नेक्स्ट ईयर पे करती है या इंटरिम डिविडेंड पे करती है तो द बेनिफिट दैट यू आर सेक्रीफाइसिंग टुडे it may have a higher cost as compared to the benefit that you are getting 1 year from now. तो अगेन इट इज प्रॉब्लमसम कि अर्न तो कर लिया है लेकिन आपको रिसीव कुछ नहीं हुआ जो है ना उसमें. And the third context is the increase in the shareholder wealth is basically the increase in the market price of the share. So just like we said, that let's suppose we have acquired 100,000 shares of any company, and let's suppose we purchase it for $10. So it means that we have made an investment of 1 million in that particular company. And later on, if let's suppose the share prices increases, the same investment in 100,000 shares, ठीक है, multiply by, let's suppose the share price increased and became 13. Now the amount of the investment is 1,300,000. So it means that the initial investment of 1 million has now increased to 1.3 million. 1,300. So the investors has earned a profit of 300,000. So this is normally talked about that this should be the goal of the firm, that this is beneficial for both the company and the shareholders. The company is getting its more worth in the market or the stock market, means the value of the company is increasing in terms of its share price or the market share. And on the other side, the investors also getting the benefit. उनको benefit ये है कि market price increase होने से overall जो wealth है वो increase हो जाए. So sometime they are not concerned or least concerned about this earning per share. What they are most concerned is they are concerned about the market price of the share. So if the market price of the share would increase, they can take benefit out of it. They can sell the shares and earn the profit, even though the company's earnings are not good or the company is not paying any dividend to the shareholders, but they can get the capital gain and they can get benefit out of their investment. I hope it is clear. Yes, sir. Okay, Ji. Yes, sir. Then I think we have already discussed about this thing. The reactive buyers and the sellers, basically, they base their decisions on the different information that is available in the market, based on the speculations, okay, that is available in the market, and based on the information that is provided by the financial analyst or the institutional investors regarding the performance of the company. So if the information is that in the future prospects of those particular companies are good, they will buy the shares with the anticipation that the share prices would increase and they would sell the shares at higher prices and they can get benefit out of it. And the information or the speculation is just like that, that in future the share prices would decrease. So what they would do is they would sell the shares with this anticipation that in future they may suffer more loss. And with this anticipation, with this speculation or the price information availability, they make their market decision. And one other perspective is that they have made investment in those shares. They keep on waiting that the prices may increase or prices may decrease. And meanwhile, they suffer more losses by retaining those shares instead of liquidating them, because they do not liquidate them at the right time when the information was available. Biggest losers when the things go bad, obviously when they are just reacting to the information, they are just waiting for the stock market. Sometimes it happens that the prices start decreasing and people say that now it has decreased to a certain point and now it would regain the momentum and the prices would increase, but no one knows what would be the revival time. So maybe they have purchased the shares for $200, the prices start decreasing and the prices became
let's suppose 190, 180, 160, they are expecting that from 150 the prices would revive, but instead of stopping at 150, the prices decreased and it became, let's suppose, 120. So with this anticipation that maybe revival would come, they keep on holding the shares of the company. But because of that perspective, because of their late decision, they face more losses as compared to the other people. And they have no influence over the boards because these are the small private investors. They do not have any, you can say, the bigger holding in the company. They do not have any representation in the board of directors. So they particular cannot influence the board. Contrary to them, there is another type which are the investors which they are the large private investors. Large private investors, but may be acting through the trust, private limited companies, etc. For example, in Pakistan, we सर have G. सर स्मॉल प्राइवेट शेयर होल्डर्स जो हैं उनके तो ज़्यादा जो पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं उनके मतलब उनके नेगेटिव उसमें आते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो स्मॉल प्राइवेट शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के लिए क्या बेनिफिशियल होते हैं, अपने लिए तो उनके एडवांटेजेस कम हैं, तो कंपनी के लिए उनके एडवांटेज ज्यादा होते हैं या उनके लिए भी उनकी उतनी ही मिनिमल वैल्यू होती है? देखिए, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है कि कंपनी में जितने ज्यादा स्मॉल जो है ना प्राइवेट इन्वेस्टर्स होंगे, इतनी कंपनी की बार्गेनिंग पावर जो है ना वो स्ट्रांग है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो कंपनी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, बोर्ड मीटिंग्स के अंदर जो है ना किसी डिसीजन को रिवर्ट नहीं कर सकते। तो इट इज गुड फॉर द कंपनीज टू हैव सच पीपल बिकॉज दे डू नॉट हैव यूनिटी, दे डू नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन द कंपनीज मैनेजमेंट, दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑन द बोर्ड। तो द कंपनी कैन परफॉर्म एज द वे दे वांट टू जो है, तो वो इतना ज्यादा उसको इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि जितने ज्यादा इन्फ्लुएंस आते जाएंगे तो कंपनी की जो कंट्रोलिंग जो शेयर होल्डर्स हैं, ये जो बिजनेस है उसको करना जो है वो मुश्किल होता जाएगा। तो दैट कॉन्टेक्स्ट गुड फॉर द कंपनी। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर ये प्रॉब्लम आती है कि अगर स्मॉल प्राइवेट इन्वेस्टर जो है ना शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा जो है ना वो कर रहे हैं, तो ये कंपनी की जो शेयर प्राइसेस है उसको बहुत स्पेकुलेटिव बना लेते हैं जो है ना उसमें, क्योंकि दे डू नॉट हैव लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। तो जो है ना शॉर्ट टर्म के अंदर ये बाइंग और सेलिंग की तरफ चले जाते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो जो है वो काफी ज्यादा है। तो कंपेयर टू इट, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होगा तो वो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेगा। जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेगा तो मार्केट में जो शेयर प्राइसेस हैं उनकी स्टेबिलिटी जो है ना वो उसको कंपैरेटिवली बेहतर तरीके से इंश्योर की जाएगी एज कंपेयर टू दीज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। तो इनका ये नुकसान भी हो सकता है, कंपनी को बेनिफिट भी है, बट ऑन द अदर साइड दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द कंपनी जो है ना उसमें। फाइन सर। ओके जी, देन दे आर लार्ज प्राइवेट इन्वेस्टर्स एज वी डिस्कस। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो है ना एकेडी है, अकील करीम ढेडी है जो है ना उसमें, एक खानानी एंड कालिया के नाम से फर्म थी, K&K के नाम से जो है ना, इसी तरह से ये JS बैंक वाले हैं, जहांगीर सिद्दीकी जो है, ठीक है, इसी तरीके से आरिफ हबीब है, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। तो ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो स्मॉल प्राइवेट जो है ना वो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं या ट्रस्ट हैं या इसी तरह से जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं उनको ऑन कर रहे होते हैं और उनके बिहाफ के ऊपर स्टॉक मार्केट में जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है ना कर रहे होते हैं। दीज आर नॉट पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, दीज आर नॉट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर नॉट कॉर्पोरेट शेयर होल्डर्स, ठीक है, बाय एंड लार्ज। लेकिन ये ट्रस्ट हैं या इन्वेस्टमेंट जो है ना वो कंपनीज हैं जो कि डिफरेंट बड़े शेयर होल्डर जो है ना बड़े इन्वेस्टर्स जो है ना वो चला रहे होते हैं, एंड दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन दी मार्केट जो है ना उसमें, स्पेशली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है ना इन लोगों का जो है ना मेजॉरिटी जो है ना वो रोल है। तो व्हेन दे वांट टू कीप मेक अ स्पेकुलेशन, ठीक है, रिगार्डिंग इंक्रीज इन द प्राइसेस, तो दे स्टार्ट बाइंग द शेयर्स, अ पॉजिटिव सिग्नल इन गोज इन द मार्केट रिगार्डिंग द रिवाइवल ऑफ द मार्केट, रिगार्डिंग द अपलिफ्ट ऑफ द मार्केट। तो जो छोटा जो आपका जो इन्वेस्टर है, जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं, they keep on following them, they keep on buying the shares according to the pattern that they have created, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक अपवर्ड ट्रेंड जो है वो क्रिएट कर दिया जाता है। इन द सेम वे जब एक खास हद तक के प्राइसेस को ले जाते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर फिर ये क्या करते हैं, दे स्टार्ट सेलिंग दी शेयर्स। तो अब जब ये शेयर सेल करते हैं बिकॉज दे हैव परचेज इट एट अ वेरी लो प्राइस, तो दे आर सेलिंग इट एट अ हायर प्राइस, तो दे आर गेटिंग देयर प्रॉफिट।
बट ऑन द अदर साइड जो हमने स्मॉल प्राइवेट इन्वेस्टर्स का भी कहा कि वो दे आर द बिगेस्ट लूजर, दे कीप ऑन वेटिंग, दे डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट, तो दे कम टू नो अबाउट द एग्जैक्ट सिचुएशन जब जो है ना वो प्राइसेस काफी हद तक जो है ना वो गिर चुकी होती हैं, और फिर एक मार्केट के अंदर एक ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट सेलिंग देयर शेयर्स। तो अब उस सिचुएशन में क्या है कि मोस्ट पीपल हैव स्टार्टेड सेलिंग द शेयर्स, तो ऑटोमेटिकली द शेयर प्राइसेस स्टार्ट्स डिक्रीजिंग जो है ना उसमें। जी आबिद और अमजद, आप कुछ जो है ना कहना चाह रहे हैं? सर मेरा क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास किसी कंपनी का 51% शेयर है तो सर वहाँ डिसीजन पावर मेरे पास होगी सर, इसी तरह होता है ना? तो सर कोई कंपनी है, उसको किस तरह पता चलेगा कि इसके शेयर किसके पास जा रहे हैं? जब ओपन मार्केट में जब शेयर सेल होता है तो इस चीज का कंपनी को तो नहीं पता होता ना कि नहीं, अब वो कितने हाथों वो एक शेयर बिका है। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे कंपनी में जो स्टॉक मार्केट में मेरे ब्रोकर हैं और वो किसी भी कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर मैं उनके थ्रू बाय कर लेता हूँ, इस कंपनी को तो नहीं पता होगा कि मेरे उस कंपनी के शेयर किधर जा रहे हैं। तो इसका कोई है कंपनी के पास, इसका कोई सोल्यूशन होता है? देखें पहली बात तो ये है कि जनरली एक ये जो पर्सपेक्टिव है कि सिर्फ 51% से ज़्यादा ही जो है ना उसकी जो है ना कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स होंगे, वो ज़रूरी नहीं, हम इसको टाइम एंड अगेन डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड सी बात ये है कि एट एनी टाइम इट्स नॉट नेसेसरली कि अगर लेट्स सपोज आपके 51% शेयर्स आपके पास है तो बाकी 49% मार्केट में फ्लोट हो रहे होंगे जो है ना उसमें। ठीक है, हो सकता है मार्केट में उस कंपनी के जो है ना वो 20 से 30% जो है ना शेयर फ्लोट हो रहे हैं, तो उनके हैंड चेंज होने से भी कंपनी की ओवरऑल जो कंट्रोलिंग जो पोजीशन है उसमें कोई इफेक्ट नहीं आए। और फिर वो सारे शेयर्स कोई जितने भी परचेज कर रहे हैं वो सारे के सारे यूनाइट होके अगर उसको कंट्रोल को जो है ना रिगेन करना चाहें तो वो एक अलग स्टोरी है जो बहुत कम सिचुएशंस के अंदर होता है। दूसरा ये स्टॉक मार्केट में जो है एक सीडीसी का जो है ना एक पर्सपेक्टिव जो है ना चलता है, सेंट्रल डिपॉजिटरी जो है ना उसको कंपनी बोला जाता है। तो जितने भी शेयर्स की बाइंग या सेलिंग होती है तो उसकी सेटलमेंट जो है ना सीडीसी के थ्रू होती है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपका सेंट्रल बैंक के अंदर एक क्लियरिंग हाउस फंक्शन होता है, तो इंटर बैंक जितनी भी आपकी जो सेटलमेंट होती हैं वो उस क्लियरिंग हाउस से के थ्रू जो है वो मेंटेन किए जाते हैं। तो वहाँ पे सारे के सारे बैंक्स का जो है ना रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल होते हैं, और वहाँ से उनकी जितनी भी जो है ना वो पेमेंट्स या रिसीट्स हैं उनकी सेटलमेंट को जो है ना इंश्योर किया जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से स्टॉक ब्रोकर जितनी भी बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं या उनके जो क्लाइंट्स जो बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन सीडीसी में जो है ना वो ट्रांसफर की जा रही होती है, और बाकायदा जो है ना ये जो इन्वेस्टर्स की जो चेंज हो रही होती हैं कंपनीज को जो है ना उसको जो है ना वो इंटीमेशन भी जो है ना अवेलेबल होती है जो है ना उसमें। इसी तरह से जब कंपनीज डिविडेंड देती हैं तो उससे पहले जो स्टॉक रजिस्टर मेंटेन होता है उसमें उस टाइम पे जिन शेयर होल्डर्स के पास शेयर होते हैं उनको डिविडेंड दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि जो है ना कि उसके बाद एक टाइम पीरियड के बाद अगर शेयर जो है ना वो चेंज हो जाएंगे तो अब उसको अकॉर्डिंगली जो है ना डिविडेंड को जो है ना वो कर देंगे। तो एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ डिविडेंड जो स्टॉक रजिस्टर के अकॉर्डिंगली जो शेयर होल्डर होगा डिविडेंड उनको अनाउंस कर दिए जाएंगे। तो बिल्कुल ये इन्फॉर्मेशन जो है ना मेंटेन की जाती है जो है उसमें। जी अमजद साहब, यू आर आस्किंग समथिंग। जी सर, मेरा क्वेश्चन सर ये पहले उसी के रिलेटेड ही है। जब हम बात करते हैं कि लार्ज प्राइवेट शेयर होल्डर का, दे आर एक्चुअली द मैनिपुलेटर ऑफ ओवरऑल शेयर की जो प्राइसेस को अप डाउन करने के लिए जो मार्केट के अंदर उसको करते हैं अपने एडवांटेज लेने के लिए। एंड इन एज ए रिजल्ट जो उसका सफर होता है वो स्मॉल शेयर होल्डर होता है। बट इस चीज को अवॉइड ऑफ करने के लिए क्या कंपनी के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि जब वो देखे कि इस तरह उसके शेयर को मैनिपुलेट करके उसकी प्राइस को मैनिपुलेट करके अप डाउन किया जा रहा है बाय दी प्राइवेट शेयर होल्डर, तो उस टाइम पे वो कोई ऐसा मैकेनिज्म अप्लाई करे जो कि अपने जो स्मॉल शेयर होल्डर हैं उनको लॉसेस उस तरीके से ना होने दे? कोई इस तरह का कोई टाइम अगर इसको एक्सप्लेन कर दें। उसमें ये होता है कि कंपनी के अपने पास तो ये नहीं है, क्योंकि ये जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो है ना वो कर रहे हैं, और कंपनी की भी ज्यादा वर्थ तब है जो उसके शेयर्स में जो है ना वो ट्रेडिंग हो रही है। तो ये तो सारी दुनिया में ये निज़ाम चलता है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़ी मछली हमेशा जो है ना वो छोटी को जो है ना वो खा जाती है। इसी तरह जो बड़ा इन्वेस्टर्स है वो छोटे के जो है ना एक्सपेंस के ऊपर अपना प्रॉफिट जो है ना वो गेन कर रहा होता है, और यही छोटे इन्वेस्टर्स ऐसी बात है उनको फॉलो करके या उन्हीं के साथ जो है ना हैंड इन हैंड होके कभी प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होते हैं और कभी जो है ना वो नुकसान ले जाते हैं। ये सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं है, बाकी मार्केट्स के अंदर भी ऐसी एग्जिस्ट करता है।
लेकिन उसके साथ एक मैकेनिज्म जो है जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो है ना जो एग्जिस्ट करता है, वो बेसिकली उसको बोला जाता है फ्लोर प्राइस और सीलिंग प्राइस, और सर्किट ब्रेकर का एक पर्सपेक्टिव जो है ना वो लगाया जाता है। सर्किट ब्रेकर ये है कि आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑटोमेटिकली शेयर की ट्रेडिंग जो है उस पर्टिकुलर डे के लिए जो है ना वो क्लोज कर दी जाती है। तो जनरली पाकिस्तान के अंदर ये जो सर्किट ब्रेकर जो है ना वो लगाया जाता है, दैट इज ₹5 और 1%, ठीक है, विच एवर इज ग्रेटर जो है ना उसमें। तो फॉर इंस्टेंस ऐसा है कि आपकी कंपनी का शेयर जो है वो 100 रुपीज का जो है ना वो ट्रेड हो रहा है जो है ना उसमें, ठीक है। अब 100 शेयर में जो है ये सॉरी 1 इस ये है, इट इज ₹1 और 5% ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर विच एवर इज ग्रेटर जो है ना उसमें, ठीक है। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में ये है कि अगर तो 1 जो है वो ग्रेटर है या 5% ग्रेटर है, जो भी वैल्यू ग्रेटर होगी उसको लिमिट को जैसे ही टच किया जाएगा तो फ्लोर प्राइस या सीलिंग प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में वहां ट्रेडिंग रोक दी जाएगी। फॉर एग्जांपल इस कॉन्टेक्स्ट में अगर 100 का 5% लें तो कितना बनता है? ₹5। ऐसे ही है। जी जी सर, तो बिल्कुल वैसा ही है। 5 इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब है ये जो आपकी जो विंडो है जिसमें प्राइस जो है ना फ्लक्चुएट करेगी, ये 5 की है। इसका मतलब ये है कि 100 की जो शेयर प्राइस है उसकी अगर हम विंडो क्रिएट करें +5 और -5 के अकॉर्डिंगली, तो मैक्सिमम जो सीलिंग प्राइस जाएगी वो कितनी है? 105, और मिनिमम जो प्राइस जाएगी वो कितनी जाएगी? 95। तो the moment share prices decreases and it reaches 95, तो ऑटोमेटिकली जो है ना स्टॉक मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू जो है ना ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर लग जाएगी। जैसे घर के अंदर होते हैं ना ये इलेक्ट्रिसिटी वाले सर्किट ब्रेकर्स, तो उसमें होता ये है कि जैसी आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो ट्रिप करती है, वोल्टेज आपका ट्रिप करता है, तो सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली जो है ना वो ऑफ हो जाता है। तो in the same way, this mechanism जो है ना prevails in the stock market, that the moment it reaches the lower limit or it reaches the upper limit, तो उसकी स्टॉक की ट्रेडिंग, ठीक है ना, क्या किया जाएगी? उसको रोक दिया जाएगा। नाउ दिस इज अ मैकेनिज्म अवेलेबल जिसके जरिए वो जो एक आप कहते हैं ना कि बिल्कुल एक जो है ना वो डाउन साइड इफेक्ट है कि प्राइस डिक्रीज होने शुरू हुई और बिल्कुल ही डिक्रीज होती गई, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है फॉर ए सर्टेन टाइम पीरियड या फॉर सर्टेन जो है ना वो टाइम लिमिट। तो अब इसके जरिए जो है ना जो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, जो छोटा इन्वेस्टर है, उसको थोड़ा सा रिलीफ टाइम पीरियड मिल सकता है कि उस इंफॉर्मेशन को गेज करके वो क्या करे, अपनी इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट कर दे या मार्केट में जो है ना वो मूव कर दे किसी और शेयर की तरफ। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है कि 1% ऑफ द शेयर, अब फॉर एग्जांपल एक शेयर है जिसकी प्राइस थी 10 रुपीज, 10 रुपीज का शेयर, अब 10 रुपीज का 5% कितना बनेगा? 0.5 बनेगा। 0.02 बनेगा सर। 10 रुपीज का जो है ना 5% 50 पैसा बनेगा ना, 50 पैसा 50 पैसा और 0.5 जो है ना उसमें। नाउ इन दिस सिचुएशन 1 रुपी इज ग्रेटर देन 50 पैसा और 0.50, ऐसे ही है। तो इसका मतलब है इसकी जो रेंज बनेगी वो 11 से 9 बनेगी। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में द मोमेंट द प्राइस रीचेस 9, तो सर्किट ब्रेकर लगेगा, ट्रेडिंग जो है ना वो क्लोज हो जाएगी इस दिन के लिए। तो सम टाइम ऐसा होता है कि जैसी स्टॉक मार्केट सुबह 9 o'clock ओपन होती है तो कुछ शेयर्स की जो है ना ट्रेडिंग विद इन फ्यू मिनट्स जो है ना या विद इन हाफ एन आवर जो है ना उसको सर्किट ब्रेकर लगा दिया जाता है, क्योंकि इतनी तेजी से स्टॉक मार्केट के स्टार्ट से जो है ना उसके अंदर जो है ना वो डाउनफॉल स्टार्ट होता है या अपर ट्रेंड स्टार्ट होता है कि उसको मोमेंटरली जो है ना वो क्लोज करना पड़ता है। तो ये एक क्वेश्चन अवेलेबल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए, लेकिन ऐसी कोई जो है मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है जिसके जरिए कंपनीज क्या करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की जो है ना जो उनकी क्या लें कि बार्गेनिंग पावर है उसको कम करके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को जो है ना प्रोटेक्ट कर सके। तो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री होने की वजह से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर समटाइम जो है ना वो नुकसान उठा जाता है। जी लेकिन सर एक टर्म यूज करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। अभी कुछ अर्सा पहले न्यूयॉर्क की भी विद इन फ्यू आवर्स
क्रैश कर गई, कराची वाली कई दफा कर जाती है, Yes, तो वो तब सर्किट ब्रेकर्स ऑन नहीं होते सर? सर्किट ब्रेकर ऑन होते हैं, लेकिन अब अगर ट्रेंड ही ये है कि आपका मोमेंटरली क्लोज हुआ है, द मोमेंट इट रीओपन्स अगेन डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो इट नहीं, लेकिन एक दिन की बात करो ना सर, एक दिन में इन फ्यू आवर्स जी अगर आप 2000-5000 पॉइंट्स कम हुए हैं, जैसा भी ये जब इसका ट्रम्प का इलेक्शन था जी तो उसमें हुआ था, तो उन्हें क्लोज करनी पड़ी थी पूरी स्टॉक मार्केट। नहीं, उसकी वजह ये है, देखिए ये तो हम एक शेयर की बात कर रहे हैं ना, तो इफ दैट सेम ट्रेंड इज प्रिवेलिंग इन मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स, अब पाकिस्तान के केस में देयर आर मोर देन 600 कंपनीज व्हिच आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट, ठीक है, उनकी ओवरऑल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अगर उसमें जो है वो 1 बेसिस पॉइंट का जो है ना फर्क आता है, तो 1 बेसिस पॉइंट का फर्क का मतलब ये है कि 8 से 10 करोड़ का नुकसान होता है। ये जो हम कह रहे होते हैं ना कि जी इंडेक्स जो है वो लेट्स सपोज 40,950 पॉइंट से डिक्रीज होके 40,940 पॉइंट्स के ऊपर आ गया, 10 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस आया, तो 10 बेसिस पॉइंट्स का मतलब ये हो सकता है तकरीबन 70-80 करोड़ रुपए का जो है ना वहां पे इन्वेस्टर्स को जो है ना वो लॉस हो गया। तो नाउ थिंक ऑफ दिस थिंग कि अगर आप इन अ सिंगल डे आपकी जो स्टॉक मार्केट है उसमें 200-300 पॉइंट्स जो नॉर्मल रूटीन के अंदर होते हैं, या आपके 1000 जो है ना वो पॉइंट्स तक जो है वो उसके अंदर डिक्रीज आ गया, कि ओवरऑल ट्रेंड ये है कि आपकी 700 कंपनीज है, 700 में ही डाउनवर्ड ट्रेंड चला है, और बिलियंस ऑफ रुपीस का जो है ना वो डेली बेसिस के ऊपर जो है ना वो लॉस हो गया है, तो ऑटोमेटिकली इट वुड लीड टुवर्ड्स द मार्केट क्रैश जो है ना, तो सर्किट ब्रेकर्स आर देयर। लेकिन अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ शेयर्स ऐसे भी हैं कंपनी के, जैसे अब जो यूनिलीवर का शेयर है दैट इज ट्रेडिंग आई थिंक मोर देन 5000 रुपीज जो है ना उसमें, तो उसका 5000 का जो यहाँ पे आपका जो हमने पर्सपेक्टिव लगाया 5% वाला, तो इसका मतलब ये है कि वो तो जो शेयर प्राइस है वो तकरीबन 250 से चेंज होगी तो तब सर्किट ब्रेकर लगेगा। अब 250 अगर एक कॉन्टेक्स्ट में करें तो कंपनी के मिलियंस हैं शेयर जो है ना जो मार्केट में फ्लोटेड है, तो उस हिसाब से अगर कॉन्टेक्स्ट लगाए ना तो कहां तक चले जाते हैं लॉस। तो ये तो हम सिर्फ एक स्मॉल पर्सपेक्टिव के अंदर देख रहे हैं ना कि फॉर इंस्टेंस हमारा ये हुआ कि कुछ रुपीस का चेंज आया है, कुछ पैसेस का चेंज आया है, लेकिन जब इसको ओवरऑल मार्केट के ऊपर स्प्रेड करते हैं तो वहां पे विद इन अ फ्यू मिनट्स जो है ना मे बी जो है ना मिलियंस क्या बिलियंस और ट्रिलियंस के अंदर जो है ना वो लॉस कन्वर्ट हो जाए जो है। जी तारिक साहब, Right, sir. वांट टू से समथिंग? सर मेरा क्वेश्चन है, जैसा कि जब ये टेलीकॉम का जब ये इंकलाब आया तो नोकिया सबसे टॉप पे था सर, ये सैमसंग या आईफोन ये बाद में आए हैं सर, जी ठीक है, नोकिया उस टाइम यानी कि इनिशियल में सबसे टॉप पे था, फिर नोकिया का कोई सीईओ या कोई उनका वो बड़ा आया जिसने कहा कि हम एंड्रॉयड पे नहीं हम विंडो फोन पे जा रहे हैं, ठीक है, उसके एक डिसीजन में नोकिया को कहाँ से कहाँ उठा के फेंक दिया। अभी नोकिया का अभी दोबारा नाम आ रहा है कि स्मार्टफोन नोकिया के अभी आ रहे हैं, ठीक है, जबकि नोकिया सबसे पहले टॉप पे था। तो इस वजह से एक बंदे के डिसीजन की वजह से पूरी कंपनी को ऑलमोस्ट कंपनी पूरी खत्म होगी। तो इस तरह के जब ये कोई क्राइसिस आते हैं तो इसका जो देखें एंड यूजर को तो जो होता है इसका जो एंड शेयर होल्डर उसका तो बेड़ा गर्क होता ही होता है, ठीक है, पूरी कंपनी का भी साथ ही होता है। तो इसका फिर वो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए क्या करती हैं कंपनियां, क्या उनके पास होता है इनका सद्भाव करने का क्या तरीकाकार है? इसमें ये है कि देखें एक सिचुएशन ये है कि ये तो हमारे पास एक एग्जांपल है ना जहाँ पे एक मार्केट लीडर जो था वो आउट क्लास हो गया जो है ना उसमें, बट थिंक ऑन द अदर पर्सपेक्टिव, यू आर द मार्केट लीडर, यू हैव द हाईएस्ट मार्केट शेयर, ठीक है, यू आर अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स, यू आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन द डेकेड, तो डू यू थिंक दैट यू नीड टू चेंज? तो ये भी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, ये भी तो बहुत बड़ा इशू है जो है ना उसमें। सो वंस यू आर द मार्केट लीडर तो वो जो चेंज है वो जो स्टेटस को है उसको मेंटेन करना आपकी जो है ना वो सक्सेस नजर आ रही होती है, बिकॉज इन द विंडो बेस्ड वर्जन दे डिड जो है ना वंडर जो है ना उसमें। तो चेंज जो आ रही थी इट वाज एक्सपेक्टेड कि मे बी इट वुड बी एक्सेप्टेड बाय द मार्केट और इट वोंट बी एक्सेप्टेड इन द मार्केट जो है ना उसमें, तो यू कैन गेट आउट ऑफ इट जो है ना उसमें। तो अगर नया चेंज करें तो आपकी जो है ना वो उसमें सर्वाइवल शायद हो सकता है ज्यादा है। एंड वंस यू आर द मार्केट लीडर, वंस यू आर द टॉप परफॉर्मर, वंस यू आर अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स, तो सम टाइम तो जो आपकी जो रैशनल डिसीजन है वो ये है
कि देयर इज नो नीड टू चेंज। तो अब उसमें क्योंकि डाउनफॉल आ गया, अब उस डाउनफॉल आने की वजह से जो है ना वो ये लगता है कि जी कि अगर वो एंड्रॉयड पे शिफ्ट हो जाते तो वो अच्छा था। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बट सम टाइम व्हेन द कंपनी इज गोइंग ऑन विद द सेम थिंग, फॉर एग्जांपल अब आप ये देखें कि जो आपकी जो नीश मार्केटिंग होती है, फॉर एग्जांपल मर्सिडीज है या BMW है, दे आर टारगेटिंग द रिच पीपल, दे आर टारगेटिंग द अपर मार्केट जो है ना उसमें अपर क्लास। तो ये भी तो सोचा जा सकता है कि यार कि इनको अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, जो लो प्रोडक्ट कैटेगरी है, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, लो प्राइस प्रोडक्ट्स हैं, उनको इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए ताकि ज्यादा मार्केट शेयर जो है ना वो ग्रैब करें। तो अब जो दूसरी कंपनीज हैं, अब तो पाकिस्तान के सिनेरियो के अंदर देखें तो सुजुकी जो है ना वो लोअर कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा जो है ना वो टॉप परफॉर्मिंग है जो है ना उसमें, उनकी अपनी एक नीश मार्केटिंग है जो है उसमें। अब एक कंपनी का एक अपना स्टाइल है जिसके जरिए उससे काम करना है, तो सम टाइम बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि एक बंदे का डिसीजन जो है ना वो सारी कंपनी को जो है ना वो बेड़ा गर्क कर सकता है। और दूसरी तरफ ये भी है कि उस कंपनी में जो एक बंदा है या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके डिसीजंस ही सबको बेनिफिट दे रहे होते हैं। तो ये तो रिस्क हमेशा रहता है व्हेन देयर इज चेंज इन यू कैन से सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। तो ऑनर्स आर ऑलवेज एट द मर्सी ऑफ द पीपल हु आर कंट्रोलिंग द कंपनी। तो उनके अच्छे डिसीजन उनको फायदा देंगे, अगर उनके गलत डिसीजन है तो वो उनको नुकसान देंगे जो है ना उसमें। तो उसका तो कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है। और सिंस फ्यूचर इज अनसर्टेन, सम टाइम आपका गलत डिसीजन भी जो है ना वो अच्छा साबित हो जाता है, और सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपने डिसीजन तो ठीक ही सोचा था लेकिन वो अल्टीमेटली कंपनी को ले डूबा जो है ना नुकसान में अंदर जो है ना वो चला गया। जी रियाज साहब, सॉरी आप काफी देर से कुछ जो है ना कहना चाह रहे थे। जी सर, दो क्वेश्चन है सिनेरियो में। एक तो ये है कि जब सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं तो क्या ये बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट हो जाते हैं या इनको उसकी ट्रेडिंग को देखते हुए किया जाता है, नंबर वन। बाय नंबर डिफॉल्ट टू ये कि राइट सर, और नंबर टू ये सर कि ये उसकी प्राइस पे ही सर्किट ब्रेकर है या वॉल्यूम की ट्रेडिंग पे भी है कि कंपनी का शेयर जो है वो इतना ट्रेड हो गया है या इतना ट्रेड नहीं हुआ है, क्या उसके वॉल्यूम के ऊपर भी कोई सर्किट ब्रेकर है सर? नहीं, जनरली वॉल्यूम के ऊपर नहीं लगाया जाता है, जो उसकी प्राइस है उसके ऊपर जो है ना सर्किट ब्रेकर को जो है ना लगाया जाता है। क्योंकि वॉल्यूम का ये है कि जो नंबर ऑफ, अगेन प्रॉब्लम फिर आ जाती है, जो इशूड शेयर्स हैं वो वेरी कर रहे हैं बहुत सारी कंपनीज के। तो अगर वहां पे वॉल्यूम को लगा लेते हैं तो वहां फिर एक सिचुएशन जो है ना वो डिफरेंट है। तो जनरली जो लगाया जाता है सर्किट ब्रेकर वो उसकी प्राइसेस के ऊपर किया जाता है। ठीक है जी। और ये ऑटोमेटिक है, आपका जो स्टॉक मार्केट की जो ट्रेडिंग है जो है ना, जो सॉफ्टवेयर उसको मैनेज कर रहे हैं उसमें ऑटोमेटिकली ये चीज फीड होती है। अदरवाइज तो ये पॉसिबल ही नहीं है मैन्युअली इस चीज को करना, क्योंकि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ शेयर्स आर ट्रेडेड, ठीक है ना, विद इन मिनट्स और विद इन सेकेंड जो है ना। तो किस शेयर की किस प्राइस में कितना चेंज आया और उसने कितना रीगेन कर लिया विद इन मिनट्स, तो वो आपको मैन्युअली जो है ना शायद वो कंट्रोल करना पॉसिबल हो ही नहीं सकता जो है ना उसको। तो उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है ना वो कर रहे होते हैं। Okay, Ji, then moving forward, राइट सर, थैंक यू। these people have the greater influence. They may provide bulk of the executive directors since they are the expertise, they are the major investors. In Pakistan, these people are the focus of the corporate governance endeavors. अगर इन लोगों को जो है ना वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से जो है ना वो कंट्रोल कर लिया जाए तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी या बेहतर हो जाएगी जो है ना उसमें। When we talk about corporate shareholders, these are the holding companies. These are the companies which are basically holding the most of the shares of the other companies, so including the group of companies. जैसे AWT है तो AWT के अंदर जो है ना वो उसकी सीमेंट भी है जो है, इसी तरह से उसकी इंश्योरेंस भी है, अदर जो है ना वो कंपनीज जो है ना वो ऑपरेट कर रही हैं। तो एक मेन जो है ना वो होल्डिंग कंपनी है जिसके फर्दर आगे जो है ना वो डिफरेंट सब्सिडीज जो है ना वो काम कर रही हैं। इसी तरह मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, when they want to increase their operations जो है ना geographically, तो दूसरी कंट्रीज के अंदर जो है अपने बिजनेसेस को स्प्रेड करने का एक तरीकाकार ये है कि वहाँ जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उनको क्या कर लिया जाए, एक्वायर कर लिया जाए, उनकी शेयर्स को एक्वायर कर। जैसे आपने देखा होगा कि रिसेंट जो तकरीबन 4-5 ईयर से पहले जो 2007 ऑनवर्ड्स जो था बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर बूम था, तो उस टाइम के अंदर डिफरेंट जो है ना इंटरनेशनल बैंक्स आ रहे थे जो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो है ना इन्वेस्ट कर रहे थे, लोकल जो है ना जो बैंक्स वगैरह थे उनको एक्वायर कर रहे थे। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने उस टाइम पे यूनियन बैंक को जो है ना वो एक्वायर किया। इसी तरीके से
जो ABN एमरो बैंक एक एग्जिस्ट करता था जो है ना, उसको रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ने जो है ना एक्वायर कर लिया। लेटर ऑन दैट रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड वाज एक्वायर्ड बाय फैसल बैंक। तो वो ये मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आके क्या कर रही होती हैं, लोकल जो एग्जिस्टिंग जो कंपनीज होती हैं या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको एक्वायर कर लेती हैं, उनकी शेयर होल्डिंग ले लेती हैं और उस तरीके से वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को क्या करती हैं, एक्सपेंड करती हैं। देन देयर कुड बी डिफरेंट ग्रुप्स या ग्रुप्स ऑफ कंपनीज, जैसे भी बात हो रही थी फौजी ग्रुप की, तो वैसा भी एग्जिस्ट कर सकता है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं या फ्रेंड्स भी हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ कंपनीज भी एग्जिस्ट कर सकती हैं जिनके शेयर जो है वो दूसरी कंपनीज में एग्जिस्ट करते हैं। These are generally well organized and well managed। obvious सी बात है, बड़ी कंपनीज हैं, एक्सपर्ट्स हैं, इनके अंदर जो डाइवर्सिटी है लोगों की, they have a corporate culture and they are doing the things in a systematic way। in Pakistan this group culture has not taken firm root। चंद जो है ना एग्जांपल जो है ना एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जनरली जो है बाय एंड लार्ज जो कंपनीज हैं वो आइसोलेशन के अंदर जो है ना वो एग्जिस्ट कर रही हैं, जो है ना उसमें मेजॉरिटी इस तरीके से। This session is just about to expire, so I am just ending it and we will again rejoin this session.